السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ ریاست تلنگانہ میں ملازمین کی تقسیم کے عمل پر حکم التوا سے تلنگانہ ہائی کورٹ کا انکار۔ ریاست تلنگانہ میں آئندہ 3 یوم کے دوران شدید سردی کی لہر ریکارڈ کیے جانے کا امکان۔ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 3 یوم کے دوران درجہ حرارت میں مسلسل گراوٹ ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔ سائبرآباد ٹریفک پولیس کی جانب سے گزشتہ 6 دن کے دوران حالت نشے میں گاڑی چلانے والے افراد کے خلاف مہم چلائی گئی، جن میں 33 افراد کو جیل بھیج دیا گیا۔ حج 2022 کے لیے 70 سال سے زائد عمر کا محفوظ زمرے بحال۔ زائد درخواستوں کی صورت میں قرعہ اندازی، ساتھی کے لیے رشتہ داروں کی تعداد میں اضافہ۔ سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا کے CEO آدر پوناوالا نے بتایا، اندرون 6 مہینے بچوں کے لیے کووڈ-19 کے ٹیکے کی تیاری کا منصوبہ۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر انجنی کمار IPS نے پیراماؤنٹ کالونی بنجارہ ہلز میں ایک صومالین شخص کو کیا گرفتار، جو کورونا اومیکرون پازیٹیو پایا گیا تھا اور لاپتہ تھا۔ تلنگانہ میں بھی اومیکرون وائرس داخل۔ محکمہ صحت کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سنواس نے بتایا، 12 دسمبر کو کینیا اور صومالیہ سے آنے والے 2 افراد کورونا وائرس کی نئی شکل اومیکرون سے متاثر۔ اس کے علاوہ ایک اور 7 سالہ بچہ بھی اومیکرون سے متاثر۔ آندھرا پردیش میں اولڈ ایج پینشن کی رقم 2500 کر دی گئی۔ آندھرا پردیش میں جگن موہن ریڈی حکومت نے اولڈ ایج پینشن کی رقم میں اضافے کا کیا فیصلہ۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل۔ واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن۔ ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ تلنگانہ میں نئے زونل سسٹم کے تحت ملازمین کی تقسیم اور الاٹمنٹ کے مسئلے پر داخل کردہ درخواست کی تلنگانہ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے 226 ٹیچرز کی جانب سے داخل کی گئی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے درخواستوں کے وکیل کے دلائل سنے۔ عدالت نے نئے زونل سسٹم کے تحت ملازمین کی تقسیم پر حکم التوا جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ حکومت نے صدر جمہوریہ اور ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے GO جاری کیا ہے۔ انہوں نے ملازمین کے الاٹمنٹ کا کام فوری روکنے کی درخواست کی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے واضح کیا ہے کہ حکومت کے موقف کی سماعت کے بغیر احکامات کی اجرائی مناسب نہیں۔ عدالت نے درخواست گزاروں کی جانب سے پیش کیے گئے اعتراضات پر آئندہ 4 ہفتوں میں رپورٹ پیش کرنے کی حکومت کو ہدایت دی ہے۔ اس سلسلے میں حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت 4 ہفتوں بعد مقرر کی گئی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں آئندہ 3 یوم کے دوران شدید سردی کی لہر ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 3 یوم کے دوران درجہ حرارت میں مسلسل گراوٹ ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے عوام کو سخت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ سردی کی لہر کے کئی منفی اثرات ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کے کئی علاقوں میں گزشتہ شب بھی درجہ حرارت میں گراوٹ ریکارڈ کی گئی تھی، اور کہا جا رہا ہے کہ 17 دسمبر کے دوران بھی درجہ حرارت میں گراوٹ ریکارڈ کیے جانے کا خدشہ ہے۔ شہر حیدرآباد کے نواحی علاقے بنڈلا گوڑا، میڈچل میں سب سے کم درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، جبکہ شہر حیدرآباد میں اقل ترین درجہ حرارت 19.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ریاست تلنگانہ میں سب سے کم درجہ حرارت ضلع عادل آباد کے موضوعات میں ریکارڈ کیا جا رہا۔ اس کے علاوہ سرپور، کمرم بھیم، آصف آباد کے علاقوں میں بھی درجہ حرارت میں مسلسل گراوٹ ریکارڈ کی جانے لگی ہے۔ سائبرآباد ٹریفک پولیس کی جانب سے گزشتہ 6 دن کے دوران حالت نشے میں گاڑی چلانے والے افراد کے خلاف مہم چلائی گئی، جن میں 33 افراد کو جیل بھیج دیا گیا، جن کی مدت 1 تا 5 دن ہے۔ اس دوران ٹریفک قواعد کی خلاف ورزی کرنے پر 16,01,000 روپے جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں۔
पुलिस के मुताबिक 6 تا 11 दिसंबर के दौरान हालत नशे में और बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाने वाले 396 अफराद को पकड़ा गया था। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2022 के लिए 70 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए महफूज जुमरे को बहाल करने का फैसला किया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद याकूब शेख की जानिब से रियासती हज कमेटियों को जारी करदा सर्कुलर में बताया गया है कि हज 2022 के लिए इब्तदा में 65 साल की उम्र की हद मुकर्रर की गई थी, ताहम 70 साल से ज्यादा उम्र के अफराद अब महफूज जुमरे के तहत अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। सर्कुलर में कहा गया है कि 70 साल से ज्यादा उम्र के ऐसे अफराद जिन्होंने जिंदगी में हज कमेटी या प्राइवेट टूर ऑपरेटर से हज का फरीजा अदा ना किया हो, वो इस महफूज जुमरे में दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। अगर रियासतों को अलॉट करदा कोटे से ज्यादा दरख्वास्तें महफूज जुमरे में हासिल होती हैं तो आजमीन का इंतखाब खुरानंदाजी के जरिए किया जाएगा। लिहाजा महफूज जुमरे के तहत भी कोई भी दरख्वास्त गुजार अपने सिलेक्शन पर दावेदारी पेश नहीं कर सकता। दरख्वास्त गुजार को दिए गए तरीक़ेकार के मुताबिक सादा कागज पर डिक्लेरेशन दाखिल करना होगा। दरख्वास्त गुजार की उम्र 31 मई 2022 को 70 साल मुकम्मल होनी चाहिए। महफूज जुमरे के दरख्वास्त गुजारों के लिए साथी का होना लाजमी रहेगा। इस मरतबा हज कमेटी ने साथी के तौर पर अहले रिश्तेदारों की तादाद में इजाफा कर दिया है। शौहर, बीवी, भाई, बहन, फर्जंद, दुख्तर, पोता, पोती, बहू, दामाद, भांजा, भांजी को साथी के तौर पर जाने की इजाजत रहेगी। महफूज जुमरे के दरख्वास्त गुजार की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने की सूरत में उनके साथी को तन्हा हज की इजाजत नहीं रहेगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट से महफूज जुमरे की शराइत की तफसीलात हासिल की जा सकती हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदर पूनावाला ने बताया है कि अंदरून 6 महीने बच्चों के लिए कोविड-19 के टीके की तैयारी का मंसूबा है। उन्होंने बताया कि बच्चों के लिए कोवैक्स टीके की तैयारी आजमाइशी मराहिल में है। इस टीके से 3 साल तक की उम्र के बच्चों का कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। लापता सोमालियन शख्स जिसका टेस्ट ओमिक्रॉन के लिए मुस्बित आया था, उसको हैदराबाद सिटी पुलिस ने पैरामाउंट कॉलोनी टोली चौकी बंजारा हिल से गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह है कि वो 12 दिसंबर को शारजा से हैदराबाद आया था। सोमालियन को टिम्स में मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ अभी पैरामाउंट कॉलोनी में 2 जो केन्या से आए हैं वो दोनों को पॉजिटिव आया है, तो वो लोगों को अभी टिम्स को शिफ्ट कर रहे हैं। शिफ्ट करके बाकी के लोगों को पूरों को एक अपार्टमेंट में जाके पूरा आरटीपीसीआर टेस्ट कर रहे हैं, कोविड का टेस्ट कर रहे हैं और पूरा जेएचएमसी वाला के पूरा एरिया सैनिटाइज कर रहे हैं। और मैडम ये कुछ जोन लगाने के बारे में, कंटेनमेंट जोन जो, हाँ वो जोन लगाने वाले हैं, कंटेनमेंट जोन लगाने वाले हैं। ये आकिमपेट कुंटा के एरिया, ये लाइन है ना, उधर से फिर टोली चौकी जो टच कर रहा है ना वो एरिया, उधर तक गेट नंबर 4 के आगे। 2 जनों के नाम क्या है मैडम? नामा नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए हम लोग नामा नहीं ले रहे हैं। ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू। रियासत तेलंगाना के हैदराबाद में नए पाए जाने वाले ओमिक्रॉन कोविड वेरिएंट के 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुतासर अफराद में एक 7 साला बच्चा भी शामिल है। ये केस एक 24 साला केन्या के शहरी और एक सोमालिया के शहरी के हैदराबाद पहुंचने के बाद सामने आया। एक और 7 साला बच्चा जो कोलकाता के लिए परवास कर रहा था, उसने भी हैदराबाद पहुंचने पर नए वर्जन के लिए मुस्बित तजुर्बा किया। तेलंगाना हुकूमत ने मगरबी बंगाल को मतला किया है। जैसा कि पहले इतला दी गई है, हुकूमत ने हैदराबाद के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर जांच के तरीक़ेकार को दीगर इक़दामात के अलावा ओमिक्रॉन के खतरे के पेश नज़र मजबूत कर दिया है। इसमें कहा गया है कि आरटीपीसीआर टेस्ट इन 11 ममालिक से आने वाले मुसाफिरों पर किए जा रहे हैं, जिन्हें मरकज ने खतरे में करार दिया है। Imported cases. One person is a female, 24 years old, Kenya nationality, has landed in our international airport on 12th of December, and this female belongs to Kenya, which is a
non-at-risk country. Okay, and another person is 23 years old male. This guy has travelled again on 12 in a different flight. Okay, both these people are belongs to non-at-risk countries. On a random basis, we could able to collect the samples because they are not completely vaccinated, partially vaccinated. So we could able to collect the samples, and that day they found to be positive, and immediately their samples has been sent for the genome sequencing. We could able to get the genome sequencing report within the 32 hours, and where they could able to found positive for the Omicron variant. Immediately, one of the female of 24 years old has been traced along with her close contacts, father and brother, and immediately they are shifted to the TIMS Gachibowli. And other person, we are in the process of tracing. Next 1 to 2 hours, the person will be traced, and we are taking the help of the police also. And the person also, along with his contacts, will be shifted to TIMS Gachibowli for further evaluation. So, in view of these 2 cases, imported cases, one is from Kenya and other one is Somalia. So we request the people to be more alert and request to follow the COVID appropriate behavior. That is starting from the wearing of the mask, both not only outside, even inside when you are in house, and also have the proper ventilation for all, and also get the vaccination done if you have not yet received 2 doses of vaccine. So these are the measures where we can prevent the further spread of this variant in our Telangana state, and the government is fully geared up to meet any eventuality. शहर हैदराबाद के इलाके मदीना सर्कल के पास मौजूद सुनीता टेक्सटाइल के पास वाक़े फुटपाथ पर कारोबार करने वाले अफराद को पुलिस की जानिब से हटा दिया गया। पुलिस का कहना है कि वो अफराद नाजायज कब्जा करते हुए फुटपाथ पर कारोबार कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें वहां से हटा दिया गया है और उन्हें इंतबाह दिया कि अगली बार वो फुटपाथ पर कारोबार ना करे। हिंदुस्तान के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन का ख्याल है कि नए मुकर्रर करदा वनडे कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली के दरमियान मामलात ठीक नहीं है, क्योंकि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में साबिक कप्तान वनडे का हिस्सा नहीं होंगे, जबकि रोहित ने टेस्ट से दस्तबरदारी इख्तियार की है। उन्होंने कोहली के वनडे सीरीज से वक्फे के वक्त पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उनकी छुट्टी का वक्त बेहतर हो सकता था। क्रिकेटर से सियासतदान बने अजहरुद्दीन ने निशानदेही की कि टेस्ट सीरीज से रोहित की गैर मौजूदगी और अब वनडे सीरीज से कोहली का वक्फा स्क्वाड में दरार के बारे में गैर जरूरी कयास आराइयों का बाइस बनेगा। कोहली ने कहा है कि वो वनडे सीरीज के लिए दस्तयाब नहीं है और रोहित शर्मा आइंदा टेस्ट के लिए दस्तयाब नहीं है। अजहरुद्दीन ने ट्वीट किया कि वक्फा लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वक्त बेहतर होना चाहिए। साबिक रुकन का ये तबसरा उस वक्त आया जब कोहली ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया से जनवरी में अपने खानदान के साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए वक्फा तलब किया और वनडे से दस्तबरदारी इख्तियार की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोहली वनडे मैचों से दस्तबरदार होने जा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी वोमिका की पहली सालगिरह मनाने के लिए वक्त निकाल रहे हैं। वोमिका की पैदाइश गुज़िश्ता साल 11 जनवरी को हुई थी और कोहली टेस्ट के इख्तिताम के बाद अपने खानदान के साथ छुट्टियां मनाने का मंसूबा बना रहे। पिछले साल जब वोमिका की पैदाइश हुई थी, कोहली एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया में पहले टेस्ट के बाद पैटर्निटी छुट्टी पर चले गए थे। बादजा कप्तान अजिंक्या रहाणे की क़यादत में टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीखी सीरीज जीती। याद रहे कि जनूबी अफ्रीका दौरे का आखिरी टेस्ट 11 जनवरी को शुरू होगा और 19 से वनडे मैचेस शुरू होंगे और सीरीज के लिए वनडे स्क्वाड का ऐलान होना बाकी है।
बालानगर जोन साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने एक धोखेबाज गैंग को पकड़ लिया जिसने कई लोगों को जाली सेकंड चैनल बैंक में सरमायाकारी करने का झांसा देकर उन्हें धोखा दिया और उनसे कई पैसे भी लूट लिए गए। पुलिस ने उनके कब्जे से 1,31,00,000 रुपए और दीगर अशिया भी बरामद कर लिए जिनकी कुल मालियत 1,76,65,000 रुपए बताई गई है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में मुलाजमीन की तकसीम के अमल पर हुक्म इल्तवा से तेलंगाना हाई कोर्ट का इनकार। रियासत तेलंगाना में आइंदा 3 यौम के दौरान शदीद सर्दी की लहर रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान। कहा जा रहा है कि आइंदा 3 यौम के दौरान दर्जे हरारत में मुसलसल गिरावट रिकॉर्ड की जा सकती है। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता 6 दिन के दौरान हालत नशे में गाड़ी चलाने वाले अफराद के खिलाफ मुहिम चलाई गई जिनमें 33 अफराद को जेल भेज दिया गया। हज 2022 के लिए 70 साल से जायद उम्र का महफूज जुमरे बहाल। जायद दरख्वास्तों की सूरत में खुरा अंदाजी, साथी के लिए रिश्तेदारों की तादाद में इजाफा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदर पूनावाला ने बताया, अंदरून 6 महीने बच्चों के लिए कोविड-19 के टीके की तैयारी का मंसूबा। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार आईपीएस ने पैरामाउंट कॉलोनी बंजारा हिल्स में एक सोमालियन शख्स को किया गिरफ्तार जो कोरोना ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया था और लापता था। तेलंगाना में भी ओमिक्रॉन वायरस दाखिल। महकमे सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास ने बताया, 12 दिसंबर को केन्या और सोमालिया से आने वाले 2 अफराद कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन से मुतासिर। इसके अलावा एक और 7 साल बच्चा भी ओमिक्रॉन से मुतासिर। आंध्र प्रदेश में ओल्ड एज पेंशन की रकम 2500 कर दी गई। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने ओल्ड एज पेंशन की रकम में इजाफे का किया फैसला। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।